آج واز بعنوان یروشلیم اور آسمانی ماں کے تحت آئیں ہم آسمانی باپ کی بیان کردہ کتاب مقدس کی نبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ باپ کے کلام میں ایک عبارت ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ الیشا نے ایلیاہ کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں۔ تو پھر باپ نے کس کی پیروی کی؟ میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ باپ نے اپنی نبوت میں یہ بیان کیوں چھوڑا؟ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جب سیون کے تمام فرزند باپ کے نمونے کی پیروی کریں گے اور آسمانی ماں کی بخشی گئی تعلیمات اور احکام پر عمل کریں گے تو نہ صرف خوشخبری تیزی سے سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیل جائے گی، بلکہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہمارے کھوئے بھائی اور بہنیں بھی باپ اور ماں کی آواز سن کر سیون کو لوٹ آئیں گے۔ آخرکار خوشخبری کا وہ عظیم کام جس کا خدا نے حکم دیا ہے اس زمین پر مکمل ہو جائے گا۔ نبوتیں یہیں ختم نہیں ہو جاتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور کون سی نبوتیں خدا نے ہمیں بخشی ہیں؟ میری میز پر کھاؤ پیو گے، یہ وہ کلمات ہیں جو 2000 سال پہلے بخشے گئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مکاشفہ کی کتاب گواہی دیتی ہے کہ خدا ہمیں ایسی دنیا بخشیں گے جہاں موت نہ ہوگی۔ یہ نبوت کی گئی تھی کہ خدا سیون کے فرزندوں کو فضل کا ایک ایسا جہان میراث میں دیں گے جہاں نہ درد ہوگا نہ دکھ، اور جس میں ابدی جلال ابد تک رہے گا۔ مسیح آن سانگ ہونگ اس زمین پر داؤد کے نام سے دوسری بار آئے۔ اس زمانہ میں آ کر انہوں نے ہمیں یعنی اپنے فرزندوں کو فضل کا ایک خاص لمحہ بخشتے ہوئے ایک بار پھر خدا کی کلیسیا کے نام سے سیون قائم کیا۔ ہم نے ابھی باپ کے دستاویزات میں سے پڑھا ہے کہ الیشا نے ایلیاہ کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ آج آئیں ہم اکٹھے ان الفاظ میں موجود نبوتی مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم یسایہ باب 62 کی طرف جاتے ہیں۔ یسایہ باب 62 آیت 6 سے پڑھتے ہیں۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو۔ اور جب تک وہ کس کو قائم کر کے؟ یروشلم کو قائم کر کے۔ انگریزی متن کہتا ہے کہ خدا یروشلم کو قائم کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خود یروشلم کو تمام بنی نوع انسان پر ظاہر کرتے ہیں؟ جب تک وہ یروشلم کو ظاہر نہ کر لے اسے آرام نہ لینے دو۔ روئی زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو۔ تو پھر باب 62 آیت 7 کی نبوت کے مطابق خدا کس کو قائم کریں گے؟ تقریباً 2700 سال پہلے خدا نے یسایہ کی کتاب میں نبوت درج کی تھی کہ وہ یروشلم کو ظاہر کر کے قائم کریں گے۔ یسایہ نبی کی گواہی کے مطابق کون یروشلم کو قائم کریں گے؟ وہ ہمیں گواہی دیتا ہے کہ خدا ہی ایسا کریں گے۔ آئیں گلتیوں باب 4 سے اس یروشلم کی شناخت کی تصدیق کرتے ہیں۔ گلتیوں باب 4 آیت 26۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہی ہماری ماں ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا باپ ہی تھے جنہوں نے آسمانی ماں کے وجود کو اپنے بچوں پر ظاہر کیا اور انہیں دنیا کے تمام قوموں کے سامنے ظاہر کیا۔ جیسا کہ نبوت کی گئی تھی، خدا باپ اس زمانہ میں اس زمین پر آئے تاکہ دنیا کے تمام لوگوں پر آسمانی ماں یروشلم کو ظاہر کریں۔ اب ہم یسایہ باب 60 سے تصدیق کرتے ہیں کہ نتیجہ کے طور پر سیون میں کون سے نبوتی واقعات رونما ہوں گے۔
벌어지게 되는지 그 광경을 이사야 60장을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. यसायाह बाब 60 मुस्तकबिल के जलाल का गीत गाता है जो यरूशलेम को मिलेगा। 받을 영광을 노래하는 यसायाह बाब 60 आयत 1, 이사야 60장 1절입니다. उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर। 캄캄함이 만민을 가리우려니와라고 했습니다. ये कहा गया है कि तीरगी तमाम उम्मतों पर छा जाएगी। 민들을 가리울 것이다고 했습니다. 어두움이 नबूवत की तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर का मतलब है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब कोई रोशनी नहीं होगी। 없는 그런 환경과 상황이 이제 오게 될 것을 예언한 것이죠. लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायां होगा। 그 영광이 내 위에 나타나리니 आयत 3, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलुआ की तजल्ली में चलेंगे। 나올 것이라고 했습니다. अगर यही वो बात है जिसे किताब मुकद्दस और अनबिया ने पेशतर ही बयान किया था, तो फिर जैसे जैसे यरूशलेम का जलाली नूर सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैलता जाएगा, हमारे खोए हुए भाई और बहनें भी मजीद तेजी से सय्यून लौट आएंगे। 돌아오게끔 되어 있습니다. चाहे हम रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, 할 때도 또 पेरो या अफ्रीका में खुशखबरी की मुनादी कर रहे हूं, 아프리카 복음을 할 때도 खुदा ने हमेशा हमारे लिए आसमानी माँ यरूशलेम की सच्चाई का नूर रोशन करने की एक राह खोली है, 열어주셨고 그로 말미암아 जिसके जरिए मुख्तलिफ जुबानों और तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले दुनिया भर के तमाम लोग सियून को लौट चुके हैं। 다 ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब मुकद्दस ने नबूवत की थी। 성경 예언 그대로였습니다. चूंकि नबूवत का एक छोटा सा हिस्सा भी नाकाम नहीं हो सकता, 반드시 इसलिए हम सबको इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये यकीनन पूरी होगी। 왜 खुदा बाप ने हमारे लिए ये कलमात क्यों छोड़े हैं कि मैं माँ की पैरवी करता हूँ। 남겨놓고 가셨는지 मजीद बुरा, उन्होंने सय्यून के फर्जंदों को ये कहते हुए या दिलाया है कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। जैसे जैसे यरूशलेम का जलाली नूर तारीकी में डूबती दुनिया में फैल रहा है, 세계에 전해지는 이와 같은 그 상황 속에서 हमारे खोए हुए भाई और बहनें सब सियून को लौट आएंगे। 돌아온다는 사실을 अब हम आयत 3 की तरफ जाते हैं। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तल्लुआ की तजल्ली में चलेंगे। 명으로 나오리라. आयत 4, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे, 원방에 속겠고 वो दूर दराज कौमों से आएंगे 나라에 속겠고 और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। 것이라. किन हालात में ये नबूवत की गई थी कि ये सब कुछ रूनुमा होगा? 되어 있습니까? ये चीजें उस वक्त रूनुमा होंगी जब यरूशलेम के जलाली नूर का ऐलान तमाम दुनिया में किया जाएगा। 파되게 되었을 때 आप सब कुछ नबूवत के मुताबिक यकीनन पूरा होना चाहिए। 돼야 됩니다. 예언 नबूवत के मुताबिक बाप इस जमीन पर आए, कलीसिया कायम की, 예언대로 37년 37 बरसों तक खुशखबरी की राह पर चले और हम पर आसमानी माँ को जाहिर किया। 하늘 어머니를 우리 자녀들에게 알리시고 하늘 어머니 बाप ने पहले ही हमें सिखाया था कि जब उनके फर्जंद आसमानी माँ के जलाल का ऐलान सामरिया और जमीन की इंतहा तक करेंगे, 먼 나라에서부터 아들들이 딸들이 तो एक बड़ा काम शुरू होगा जहां बेटे दूर से आएंगे और बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। 아버지께서는 알려주고 가셨습니다. जब बाप जमीन पर थे तो सिर्फ 13 कलीसियाएं थीं और आज 7,800 से जायद हैं। खुदा की कलीसिया की उस तरक्की के पीछे कौन है? 교회로 성장될 수 있었던 그 이면에 आप सब, क्या इतनी कलीसियाएं किसी एक पासबानी अमला की अजीम काबिलियत से कायम हुई थीं? 교회를 그렇게 많이 세웠을까요? 어떤 क्या आपको लगता है कि ये अजीम काम एक खास रहनुमा की शानदार क़यादत की वजह से हुआ? 있다고 생각합니까? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किताब मुकद्दस में हर चीज की नबूवत की गई थी। बाप और माँ ने कहा, 가서 जाओ और सामरिया और जमीन की इंतहा तक यरूशलेम के जलाल की मुनादी करो। 그리 할 때 तब मेरे खोए हुए बेटे दूर से लौट आएंगे 원방에서부터 और मेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे और सब सिय्योन को लौट आएंगी। 다 시온으로 돌아오게 ये इस जमाना के वो नबूवती मनाजर हैं जिनके मुतालिक खुदा ने आज से 2700 साल पहले ही नबूवत कर दी थी। 그대로 जैसे कि लिखी हुई नबूवतें पूरी हो चुकी हैं, 오늘날 इसलिए बाप और माँ के जलाल की खबर अब एशिया, अफ्रीका, ओकियानोसिया, यूरोप, शमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका में फैल रही है। 전 세계 모든
대륙마다 또 많은 거기에 속해 हर बराज़म में और अनगिनत कौमों में इस मुबारक खबर को सुनने वाले लोग तौबा कर रहे हैं 이런 사람들이 전부 회개하고 और मुसलसल सिय्यून की तरफ वापस लौट रहे हैं। 멈추질 않고 있습니다. 이건 इस सब की क्या वजह है? 무엇 때문입니까? ये सब नबूवत के बायस है। आए हम एक बार फिर याद करें कि सब कुछ नबूवत के मुताबिक ही पूरा होगा। आए हम इसकी तस्दीक आयत 4 से करते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। आए बेटों और बेटियों के आने के मंजर को देखते हैं। आयत 8 से देखते हैं। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबुक की तरफ? ये कौन है जो दूर दराज मुमालिक से उड़े चले आ रहे हैं? आयत 11 से देखते हैं। और तेरे फाटक हमेशा खुले रहेंगे, वो दिन रात कभी बंद न होंगे, ताकि कौमों की दौलत और उनके बादशाहों को तेरे पास लाएं। क्योंकि वो कौम और वो मुमलकत जो तेरी खिदमत गुजारी न करेगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लुबनान का जलाल तेरे पास आएगा, सुरू और सनोबर और दीवदार सब आएंगे, ताकि मेरे मकदस को आरास्ता करें और मैं अपने पाँवों की कुर्सी को रौनक बख्शूंगा। और तेरे गारत गरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे, और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कुद्दूस का सियून रखेंगे। यशायाह बाब 60 यरूशलेम के बारे में खुदा की मर्जी को कई तमसीली बातों से बयान करता है, ताकि लोग नबूवत को आसानी से समझ सकें। आयत 20 से देखते हैं। तेरा सूरज फिर कभी न ढलेगा और तेरे चांद को जवाल न होगा, क्योंकि खुदावन तेरा अब्दी नूर होगा। और क्या होगा? तेरे मातिम के दिन खत्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अबद तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा, आप में से सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और सबसे हकीर के साथ क्या होगा? एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। जब बाप इस जमीन पर आए तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हर एक को मेरी पैरवी करनी चाहिए, बल्कि आसमान पर जाने से पहले उन्होंने हमारे लिए ये कलमात छोड़े कि माँ की पैरवी करो। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। गलतियों बाब 4 आयत 26 में यह लिखा है, जब सामरिया और जमीन की इंतहा तक हर जगह आसमानी माँ की गवाही दी जाए और उनका ऐलान किया जाए, तो फिर तमाम बनी नू इंसान को क्या बख्शा जाएगा? हमेशा की जिंदगी बख्शी जाएगी, जिसका खुदा ने वादा किया है। आप सबको अपनी जिस्मानी माओं के वसीला जिस्मानी जिंदगी बख्शी गई थी। इसी तरह अब्दी जिंदगी हमें हमारी अब्दी आसमानी माँ के बगैर नहीं बख्शी जा सकती। हमारी कलीसिया नबूवत के मरहले पर खड़ी है और आज तक उसी नबूवत के मुताबिक आगे बढ़ती जा रही है। जूं जूं बाकी पेशेंगोयां पूरी होती जाएंगी, जब यरूशलेम हमारी आसमानी माँ की खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक की जाएगी, तो हमारे तमाम खोए हुए भाई और बहनें एक एक करके सच्चाई की तरफ लौट आएंगे। खुदा ने हमारे लिए मत्ती की इंजील में ऐसी नबूवत छोड़ी है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। बच्चे सिर्फ उस वक्त जवाब देते हैं जब वो अपनी माँ की आवाज सुनते हैं। अगरचा दुनिया में बहुत से जानवर हैं, पर खुदा ने हमें खास तौर पर मुर्गी की मिसाल से ये तमसील दी। मुर्गी जमा करती है। हम अपने खोए भाइयों और बहनों को सिर्फ उसी वक्त ढूंढ सकते और जमा कर सकते हैं जब खुदा माँ का वजूद जाहिर किया जाएगा। किताब मुकद्दस कहती है कि सिर्फ तभी बच्चे सिय्योन को लौटेंगे।
इसलिए 37 सालों तक आसमानी बाप ने कोने के सिरे का पत्थर रखा और खुशखबरी की बुनियाद कायम की। 기초를 또 세워주시고 하늘은 आसमानी माँ अब दुनिया के कोने कोने से खोए हुए फर्जंदों को जमा कर रही हैं। 불러 모으시는 가운데 있습니다. दरहकीकत बाप के ज़माने की कलीसिया के मुकाबले में आज कलीसिया नाकाबिले मुवाजना तरक्की का तजर्बा कर रही है, 할 수 없을 만큼 전 세계 곳곳에서 다양한 인종이 क्योंकि दुनिया के हर कोने से मुख्तलिफ नस्लों और कौमों के लोग सच्चाई की खुशखबरी को सुनते हैं और हमारी आसमानी माँ यरूशलेम की बानाहों में गरू आ रहे हैं। 가운데 있습니다. 이런 आप सब, क्या आप सोचते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हम इन कौमों के कामों में बहुत माहिर हैं? 역할을 이렇게 잘 하기 때문이라고 생각하십니까? दानिएल की किताब में हम देखते हैं कि नबूकदनजर बादशाह ने भी एक बार ऐसा ही सोचा था। 이 바벨론 하게 될 अपने दिनों में बाबुल दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत थी जिसका मुवाजना आज के अमेरिका से किया जा सकता है। 그 당시에 말이죠. उसका मानना था कि उसने दुनिया की ताकतवर तरीन कौम को सिर्फ अपनी काबिलियत, ताकत, हिकमत और अक़ियादत से बनाया है। 또 통솔력으로 그렇게 다 이룬 줄로 생각했습니다. 그때 하나님께서 उस लम्हा पर खुदा ने नबूकदनजर बादशाह से इंसानी अक्ल छीन ली। 사람의 마음을 빼앗아 버렸습니다. मुकम्मल तौर पर दुनियावी नुक्ते नज़र से ये सच है कि नबूकदनजर बादशाह ने ऐसा किया था। ताहम वो कौन था जिसने ये सब चीजें मुमकिन बनाई थीं? 하신 분이 누구십니까? ये खुदा थे। जिस लम्हे ये ख्याल उसके जिहन में आया 들게 되고 그 और उसने ये अल्फाज कहे, 이루게 되니까 이제 उसी लम्हे सारा इख्तियार, ताकत और मकाम जो उसके पास था वो सब चिहीन लिया गया। 한순간에 다 잃어버린 바 되었고 7 बरस तक वो मैदान के हैवानों के साथ रहा और आसमान की शबनम से तर हुआ। 밤이슬을 맞아가면서 वो 7 बरस ऐसी हालत में रहा कि उसकी अक्ल इंसानी नहीं रही थी। 7년을 거하게 되었습니다. 그러다가 एक बार जब उसे ये एहसास हुआ कि कायनात की सब चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं और इन सब पर खुदा की ही हुकूमत है और ये कि उसका इख्तियार भी खुदा की तरफ से एक तहफ़ा था, 깨닫고 나니 और जब वो बिलाखिर समझ गया कि उसने बाबल की सल्तनत कायम नहीं की थी बल्कि ये कि खुदा ही हैं जो ज़मानों और तारीख़ की रहनुमाई करते हैं, 사실을 비로소 깨닫고 나니까 그제야 तब जाकर उसकी अक्ल बहाल हुई। 정신이 되돌아와서 उसकी सल्तनत और तख्त भी बहाल हो गया। ये दानिएल की किताब में दर्ज है। 다니엘서에 기록이 되어 있습니다. आप सब, जो कुछ भी हम करते हैं ये हमारे बाप और माँ ही हैं जिन्होंने हर काम में हमारे लिए राह खोली है। 아버지 어머니께서 अब हम वो काम कर रहे हैं जिसे बाप और माँ ने हजारों साल पहले हमारे लिए तैयार किया था। 우리가 지금 하고 있습니다. लिहाजा ये हरगिज ऐसी खुशखबरी नहीं है जिसका मुकद्दर नाकामी हो। इसका पूरा होना यकीनी है। ऐसा क्यों है? किताब मुकद्दस की नबूवतें क्या कहती हैं कि इस खुशखबरी के साथ क्या होगा? इसकी नबूवत खुशखबरी के तौर पर की गई है जो यकीनन पूरी होगी। खुदा ने कहा, खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक की जाएगी और ये दुनिया के सब लोगों पर जाहिर की जाएगी। इसलिए उस नबूवत के मुताबिक आज सियून के फर्जंद नबूवत के नरसिंगे के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। 전 세계 곳곳에서 이 복음을 전파 क्या हम सब तमाम दुनिया में खुशखबरी की मुनादी के काम में अपने दिलों को मुत्हिद नहीं कर रहे हैं? 우리 교회는 हमारी कलीसिया नबूवत के मरहले पर खड़ी है और नबूवत के मुताबिक खुशखबरी का काम आगे बढ़ रहा है। 진행이 되고 있습니다. मैंने सुना है कि बुसान के अराकीन जापान में बड़े पैमाने पर खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं और ये कि उन्होंने कई कलीसियाएं कायम की हैं। ये वाकई एक हैरत अंगीज बात है कि ऐसे मुल्क में जहां बेशुमार मुख्तलिफ माबूदों की प्रस्तुश की जाती है, लोग बाप और माँ की आवाज़ सुनकर सियून को लौट रहे हैं। ये कहा जाता है कि जापान में मसीही आबादी सिर्फ 1% है। 하니까 말이죠. ये एक नाकाबिल यकीन हद तक छोटी तादाद है। इस हकीकत के दरमियान जहां कहीं भी हमारी खुशखबरी की मुनादी की जाती है, खुदा राह खोल रहे हैं। 다 열리고 있습니다. 어떤 사람들은 बाज लोग दावा करते हैं कि जापान में खुशखबरी की मुनादी करना नामुमकिन है। 뭐 불가능하다고 이렇게 얘기를 합니다만 नबूत नामुमकिन से ना को मिटा देती है और ऐलान करती है कि ये सब कुछ यकीनन मुमकिन है। 불자를 없애버렸습니다. सब कुछ मुमकिन हो जाता है जब हम किसके बारे में ऐलान करें। 누구를 전할 때 किताब मुक़द्दस सिखाती है कि जब हम यरूशलेम का नूर चुकमाएंगे तो सब लोग वापस लौट आएंगे। उस नबूत के मुताबिक आए हम सब सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करें। 또 되길 바라겠습니다. जैसा कि यसायाह बाब 60 में नबूवत की गई है, सबसे छोटा 1000 और सबसे हकीर एक ज़बरदस्त कौम बन गया है।
이 복음도 여러분 आप सब इस खुशखबरी की मुनादी दुनिया के 178 ममालिक में की जा चुकी है। 전파가 돼 있습니다. 왜냐하면 इसकी वजह यह है कि बाप और माँ ने हर जगह इस खुशखबरी को कामयाब बनाया है। 들어놓으셨기 때문에 खुदा ने आसमान, जमीन और उनमें मौजूद हर चीज को पैदा किया है। 바다에 उन्होंने मछलियों को समुद्रों में बसाया और पहाड़ों पर हर किस्म के दरख्त और पौधे उगाए। 식물들이 존재하게 하시고 मैदानों के साथ भी ऐसा ही है। 그리고 또 각 खुदा ने हर किस्म के जानवरों के रहने के लिए भी बेहतरीन हालात पैदा किए हैं। 하나님께서 만드셨습니다. वो कहते हैं, मैं हवा के परिंदों को खिलाता हूं और मैदान की घास और फूलों को पोशाक पहनाता हूं, इसलिए फिक्र न करना। 입힌다. 아무 걱정하지 말라고 말이에요. अगर हम जाकर नबूवत की खुशखबरी का वो नरसिंगा फूंकें जिसे खुदा ने कामयाबी के लिए मुकर्रर किया है और यरूशलेम का जलाल जाहिर करें, तो वो सब हमारे पास आएंगे और उन्हें गोद में और कंधों पर उठाकर लाया जाएगा। 함께 올 것이고 업혀 올 것이고 시온으로 खुदा की कलीसिया सियून है, यानी वो नबूवती कलीसिया जहां सब लोग वापस आएंगे। 교회입니다. जब इस जमीन पर खुशखबरी का काम खत्म हो जाता है, तो क्या हमारे बारे में मजीद नबूवतें बाकी नहीं रहेंगी? नबूत सिर्फ इस जमीन पर वजूद नहीं रखती। नबूत का सिलसिला आसमान की बादशाही में भी जारी रहेगा। 시간은 계속 이어지게 되는데요. आए हम मुकाशफा बाब 21 आयत 1 से इकट्ठे देखते हैं कि ये नबूवतें क्या हैं। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। 있지 않더라고 했습니다. ये कहा गया है कि अब हमारे सामने एक नई दुनिया जाहिर होगी। दूसरे अल्फाज में ये आसमान की बादशाही है। 천국이죠. आयत 4 से जारी रखते हैं। आयत 4 के अल्फाज देखते हैं। 말씀 보시면 और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद क्या नहीं रहेगी? न मौत रहेगी। 없다고요? 사망을 없애시겠다는 खुदा मौत को नाबूद करने का नबूवती वादा बख्शते हैं। 자, 죽음이 없고 그다음 न और क्या नहीं रहेगा? न मातिम रहेगा, 애통하는 것이나 곡하는 것이 न आह वो नाला न दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라고 했습니다. आए उसके बाद आने वाले नबूती वादे पर नजर डालते हैं। 약속을 한번 보도록 आयत 하겠습니다. 5। 보절입니다. 보좌에 और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। 신실하고 참되니 기록하라 하셨습니다. नबूत के ये कलमात झूठे नहीं हैं। 거짓이 아닙니다. ये अफसाने नहीं हैं और ना ही ख्याली कहानियां। 실제 खुदा ने खुद हमें उन चीजों के बारे में अपना कलाम बख्शा है जो वाकई पूरी होंगी। न मौत रहेगी और न मातिम रहेगा, न आह वो नाला न दर्द। 그리고 영원하고 영원한 खुदा की बरकत के अब्दी और अब्दौलाबाद औकात जारी रहेंगे। 계속 이어지게 될 것이다. 그 क्या आसमानी बाप ने हमें सच्चाई की तरफ नहीं बुलाया और हमारी रहनुमाई नहीं की? 진리 가운데 क्या आसमानी माँ सच्चाई में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं ताकि हम उस अबदी बादशाही के वारिस बन सकें? 것 아니겠습니까? यूं हमारी खुदा की कलीसिया ही वो कलीसिया है जिसकी नबूवत की गई थी। 다시는 ये वही कलीसिया है जिसके बारे में नबूवत की गई है कि ये एक ऐसी जलाली दुनिया पाएगी जहां न मौत रहेगी, न मातिम, न आह व नाला न दर्द, 영생만이 날마다 어떤 기쁨만 बल्कि सिर्फ बरकत, हमेशा की जिंदगी, खुशी, 행복만이 존재하는 उम्मीद और सिर्फ अब्दौलाबाद मुसरत होगी। 허락받게끔 예언이 돼 있는 교회입니다. अब हम एक और नबूवत की तरफ जाते हैं जो हमें मुकाशफा बाब 22 में बख्शी गई है। 으로 또 한번 넘어가 봅시다. हम बाब 22 आयत 1 की तरफ जाते हैं। फिर उसने मुझे बल्लोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। 가운데로 흐르더라. 강자 위에 और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। 만국을 소성하기 위하여 있더라. और फिर लानत न होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, 종들이 그를 섬기며 그의 और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। 다시는 밤이 और फिर रात न होगी, और वो चराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। और वो क्या करेंगे? अब्दुलाबाद बादशाही करेंगे। 뭘 한다고요? 왕노릇 하리로다 하고 했습니다. खुदा ने हमसे जलाल के ऐसे वक्त का वादा किया है जब हम अपनी तमाम ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ पूरा कर पाएंगे। 약속을 해놓으셨습니다.
खुदा ने यूहन्ना रसूल पर ये नबूवतें ज़ाहिर की और उसे दिखाया कि क्या होने वाला है और इन्हें मुकाशफा की किताब में दर्ज करवाया ताकि हम जो इन आखिरी दिनों में रह रहे हैं इन्हें हासिल करके इनका ऐलान करें। 전부 전하라고 요한계시록이라는 이 성경의 말씀을 담아 놓으셨던 것 아니겠습니까? इस जलाली नबूवत की राह पर चलते हुए हम नई यरूशलेम आसमानी माँ की गवाही दे रहे हैं 또 새 예루살렘 하늘 어머니를 증거하고 있고 और सामरिया और जमीन की अंतहा तक खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। अगर हम जाएं तो खुदा सब कुछ मुमकिन करेंगे। 다 되게 해주십니다. बहुत सी कौमें हमारा इंतजार कर रही हैं। 을 기다리고 있습니다. हमें सिर्फ नबूवत के नरसिंगे के मुताबिक अमल करने की जरूरत है। फिर हम अपनी तमाम जिंदगियों में अंदर आते वक्त और बाहर जाते वक्त मुबारक होंगे। 나와도 복을 받고 तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भीड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। 내 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받게 될 것이다. खुदा का वादा है कि वो हमें हर काम में बरकत देंगे। 라고 약속을 하셨습니다. ये खुदा की कलीसिया है जिसके बारे में खुदा ने नबूवत की थी। 우리 하나님의 बाप और माँ की आवाज़ सुनकर हम खुदा की कलीसिया में दाखिल हुए हैं। 들어온 이 하나님 बाप की आवाज़ की पैरवी करते हुए आए हम सब आसमान की बादशाही का सफ़र करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी पीछे न रह जाए जब तक कि हम नबूवत की तकमील तक न पहुंच जाएं। आए हम दानी आयल बाब 7 आयत 17 देखते हैं। 말씀 함께 보겠습니다. बाब 7 आयत 17। 보시면 그 ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे। 세상에 일어날 लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग, 지극히 높으신 자의 खुदा के लोग क्या करेंगे? 어떻게 한다고요? सल्तनत ले लेंगे और 결국 나라를 얻으리니 वो कब तक उसके मालिक रहेंगे? 어느 정도 된다고 했습니까? अबद तक, हाँ, अब्दुल्लाबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। 영원하리라. 한 सिर्फ एक अबद काफी नहीं है। 만족되지가 않습니다. एक बार फिर अबद तक, 두 번, 2 बार भी काफी नहीं है। तीसरी बार यह कहा गया है कि अब्दुल्लाबाद तक। 영원하리라. अबद तक, हाँ, अब्दुल्लाबाद तक। 영원하리라. ये लोगों की तरफ से दी गई जमानत नहीं है बल्कि एक ऐसा वादा है जिसकी जमानत खुद खुदा ने दी है। 이 약속을 इस वादा के मुताबिक आप बाप और माँ की सच्चाई में मोहब्बत के साथ शरीक हों 함께 사랑으로 교류하시고 और यरूशलेम की सच्चाई का नूर और इसके जलाल को सारी दुनिया में और ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि ये साल वाकई मुबारक साल हो। 그래서 복된 한 해가 꼭 되길 바라겠습니다. वो बादशाही जिसके हम वारिस होंगे वो एक अब्दी और लाजवाल बादशाही है। 나라입니다. ये हरगिज तबाह नहीं होगी। ये एक ऐसी बादशाही है जो जवाल पजीर नहीं होगी, एक ऐसी बादशाही जो कभी नहीं मुरझाएगी। उस अब्दी जहान में हम बाप और माँ के साथ होंगे, 모시고 आज बनात उलनाश में, कल अकदिसुरिया में और परसों जब्बार में। 모레는 삼성에서 मेहरबानी से खुलूस दिल से दुआ करें ताकि हर रोज़ आसमानी ज़ियाफ़त का इनेकाद जल्द पूरा हो सके। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सब ईमान में मजबूत रहें और बाप का इंतज़ार करें, 아버지 기다릴 수 있는 여러분들이 ये उम्मीद करते हुए कि आपने बहुत सा फजल हासिल किया है। मैं आज का वाज ख़त्म करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया।